Welcome to my YouTube channel. Chapter 67, Kalyana Masquerade Hugh Bola _ Thank you Ankala Vase Yi Sabakucha Anak Bina Asana Nahim Hoda, Inhon Hamara Kama Kafi Asana Karadia Hai. Kamala Saxena Haste Hugh Bola _ Sahi Kaha Kalyana Tumane Akira Attain Salo Taka Asaki Vajaha Se Haida Hamayi Kama Asani Se Karapa Rehi Hai Kayam Susita Sinha Rajavada. Susita G Haste Hugh Bola _ Tutaes bola raha hai jays yi sabamina kele kia hai, agara tu ora akrosana hoda tahama yaha taka kabi nahim pahaka pate. Kalyana container ko vapasa banda kara susita g se bola _ vase ankala sahila kaha hai asia kala. Susita g bola _ ora kaha hoga nace ora larikio mi parha hoga, na jane isa ladaki ka kya hoga, ekatuma ho jo apane papa ka bara sambala rehi ho. Ora eka mara nalayaka beta surfa mara saradarda barain ke alava kucha nahimata yusa nalayaka ko. Kalyana bola _ Ankala apa sintamata kijie usbi bahoda jaldi apane jimadarion ka ahasasa ho jayaga. Susita g bola _ Tumhari bata jaldi saka ho jaya beta. Aba age. Asia akaksa ko kucha kama de jisa vajaha se bami akele hi gara jane ke liye nakalage thim. Abi kar adhi rast taka hupahunchi thim ki unaki kar akanaka se ruka gayi. Bami dravera se boli _ kya wa baya kar kayam ruka gayi. Driver bola _ Pada nahim mam sahaba, apa ruki mi seka karata hu. Atana bola driver kar se nakala kar ki diki kola seka karain laga, kafi dara bita gai, akanaka se bami ko kucha galata hon ka abasa wa. Bami driver ko avaja dithu jays hai kar ke samain gayi, usaki ank gahari ho gayi kayuki driver vaham mara para wada. Bami abi kucha react karati ki usapane gardana paratiha darda mahasusawa, bami bahosa ho kuki thim. Office mi akanaka akaksa ko apane mana mi halakala mahasusawe, uska barahata ho rahi thim, akaksa apana sina sahalan laga. Tabi cabin mi om enter wa. Om ne jays hi akaksa ki halata deki vo teji se akaksa ke pasa akara bola _ by satya wa apako. Om ne jaldi se tabala para raka pani ka jalasa yutha kara akaksa ko piladia, akaksa ne eka hi sasami pura pani pilia, om akaksa ki fikra karati hu pucha _ aba apathika hi. Akaksa kucha na bola chair se saratika kara ank banda kara lia, om bola _ kya wada by sa apako. Akaksa bola _ Pada nahim akanaka se hamem kafi gabarahata hon laji thim, om bola _ by sa apathora rama kara ligie. Om ne akaksa ko cabin mi bain usak personal room mi beja dia. Akaksa ne kucha pala beta para saratika kara kucha soka bami ko kal lagadia, magara bami ka phone banda rahada. Akaksa ne kai bara bami ko kal kia magara hara bara bami ka phone banda batata. Akaksa ki enk gahari ho gayi, usain bami k driver ko bi phone malaya magara usaka bi phone banda batarahada. Akaksa room se bahara nakala dravika ko avaja lagan laga, om bi cabin mi haida, dravika dorat hu cabin mi aya, akaksa dravika se kathora avaja mi pucha _ rani sa ke satha kauna se bodyguards the. Akaksa ke attain serious expression de ka dravika gabarate hu bola _ vo sara mam ne apane satha bodyguards la jane ke liye mana karadiada. Isali unak satha surfa driver hi, magara hamain mam ko bina patakale unak pitch bodyguard beja ditha. Dravika ki bata suna akaksa ke expression kafi dark hogaitha, tabi dravika ka phone baha dravika ne eka bara akaksa ko de ka phone receive karalia. Dusari tarifa ki bait suna dravika harana ora parasana ho gaya, dravika silikara bola _ kya bakavasa kara rehi ho tumaloga, isa kays ho sakata hai. Dusari tarifa ki bata suna dravika phone raka akaksa ko durate hu dekain laga, om bola _ kya wa dravika apa kisa para sila rehida. Dravika eka najara om ko deka akaksa ko deka durate hu bola _ sara vo mam ka. Akaksa daravani avaja mi bola _ mam kya. Quote. Akaksa ki atani daravani avaja suna dravika kapat hu bola _ sara mam ki kar mili hai, magara driver mara wa hai, ora mam gayaba hai. Dravika ki bata suna cabin ka temperature eka dama se kama ho gaya, dravika ko apani sasa atakati we mahasusa ho rahi thim usaki himatanahi ho rahi thim akaksa ki tarifa dekain ka. Om saka se salate hu bola _ kya bakavasa kara rehi hai apa a's case babi sa gayaba ho sakati hai. Dravika kucha nahim bola. Tabi akaksa darama ki avaja ke satha geta pataka bahara nakala gaya, om ora dravika jaldi se akaksa ke pitch bage. Du dina bada. Akaksa rajavada palace ke.
हीथ सोफे पर पैर चढ़ाया हुए बैठा हुआ था। उसकी सराउंडिंग बहुत ही ज्यादा डाकोरा फेंका हुआ था। एकाक्ष ने बाल बिखरे हुए हैं, वही उसकी आंखें खून की जैसी लाल थी, जैसे किसी भी वक्त खून बह निकलेगा। एकाक्ष अपने सामने खड़े ईश्वरी को देख रहा था, जो अभी पुलिस के वर्दी में थी। संध्या जी रोते हुए बोली, ईशु बेटा कहाँ है हमारी बच्ची? ईश्वरी सर झुकाकर बोली, सॉरी मासी, अभी तक भाभी सा का कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हमारे लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द उन्हें ढूंढ लेंगे। ईश्वरी की बात सुन संध्या जी रोने लगी। वेभा जी और ईशानी ने संध्या जी को संभाल कर सोफे पर बिठाया। एकाक्ष किसी को एक शब्द न बोल सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। वेभा जी संध्या जी को संभाल कर बोली, जी शांत हो जाए, हमारी भूमि बहुत जल्दी मिल जाएगी हमें। संध्या जी बोली, कैसे शांत हो जाए हम वेभा, हमारी बच्ची 2 दिन से नहीं मिल रही है, ना जाने किस हाल में होंगी हमारी बच्ची। माँ की भी तबीयत खराब है, और एकाक्ष उनका हाल तो आप अच्छे से देख रहे हैं ना, 2 दिनों से मेरा बच्चा एक पल के लिए भी नहीं सोया और न ही कुछ खाया है उन्होंने। ओम एकाक्ष को रूम में जाते हुए देख रहा था। एकाक्ष का रूम, पूरे रूम में सिर्फ एक डिम लाइट की रोशनी आ रही थी। एकाक्ष बेड और बैठा अपने हाथ में लिए भूमि की चूड़ियों को देख रहा था। तभी एकाक्ष के रूम का गेट ओपन कर कोई अंदर आया, मगर एकाक्ष ने सर उठाकर नहीं देखा। ओम जिसके हाथ में खाने की प्लेट थी, ओम ने प्लेट साइड में रख एकाक्ष के पास बैठ बोला, भाई सा खाना खा लीजिए, आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मगर एकाक्ष ने कुछ नहीं बोला। ओम अब थोड़ा गुस्से में बोला, भाई मासा ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप? 2 दिनों से भाभी मासा किडनैप हो गई है, घर में सब लोग परेशान हैं और यहाँ आप ऐसे बैठे लोगों को और परेशान कर रहे हैं। भाई मासा आपको अभी भाभी मासा को ढूंढना चाहिए, ना कि ऐसे खाना पीना छोड़कर बैठना। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप भाभी मासा को कैसे ढूंढोगे? एकाक्ष ने ओम की तरफ देखा। ओम ने साइड से प्लेट उठाकर एक निवाला बनाकर एकाक्ष के मुंह की तरफ बढ़ा दिया, मगर एकाक्ष ने अभी भी अपना मुंह नहीं खोला। ओम ने एकाक्ष की तरफ देख आंखें बंद कर बोला, आपको हमारी कसम भाई सा। एकाक्ष ने वो निवाला खा लिया। ओम हल्की स्माइल के साथ एकाक्ष को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। खाना खिलाने के बाद ओम रूम से निकल गया। चैप्टर 68। तभी एकाक्ष के रूम का गेट ओपन कर कोई अंदर आया, मगर एकाक्ष ने सर उठाकर नहीं देखा। ओम जिसके हाथ में खाने की प्लेट थी, ओम ने प्लेट साइड में रख एकाक्ष के पास बैठ बोला, भाई सा खाना खा लीजिए, आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मगर एकाक्ष ने कुछ नहीं बोला। ओम अब थोड़ा गुस्से में बोला, भाई मासा ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप? 2 दिनों से भाभी मासा किडनैप हो गई है, घर में सब लोग परेशान हैं और यहाँ आप ऐसे बैठे लोगों को और परेशान कर रहे हैं। भाई मासा आपको अभी भाभी मासा को ढूंढना चाहिए, ना कि ऐसे खाना पीना छोड़कर बैठना। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप भाभी मासा को कैसे ढूंढोगे? एकाक्ष ने ओम की तरफ देखा। ओम ने साइड से प्लेट उठाकर एक निवाला बनाकर एकाक्ष के मुंह की तरफ बढ़ा दिया, मगर एकाक्ष ने अभी भी अपना मुंह नहीं खोला। ओम ने एकाक्ष की तरफ देख आंखें बंद कर बोला, आपको हमारी कसम भाई सा। एकाक्ष ने वो निवाला खा लिया। ओम हल्की स्माइल के साथ एकाक्ष को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। खाना खिलाने के बाद ओम रूम से निकल गया। अब आगे। ओम जैसे ही कमरे से बाहर निकला, एकाक्ष का फोन बज उठा। एकाक्ष ने फोन कान पर लगाकर दूसरी तरफ की बातें सुनने लगा। दूसरी तरफ की बातें सुन एकाक्ष के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा खतरनाक हो गए थे। एकाक्ष कुछ न बोल कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में जहां खिड़की से आती चांद की रोशनी बेड पर बैठी एक अप्सरा सी सुंदर लड़की पर पड़ रही थी। चांद की रोशनी में उसका शरीर सोने सा दमक रहा था। तभी रूम का गेट ओपन कर 2 आदमी अंदर आए। उनमें से एक आदमी ने इंजेक्शन में कुछ इंजेक्ट कर उस लड़की के बाजू में लगा दिया। उनमें से दूसरा आदमी लड़की को देख अपनी नजरों में हवस लाकर बोला, यार क्या खूबसूरत बला है, आज तक मैंने इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा, मेरा तो मन अभी इसके शरीर को चूमने का कर रहा है। उसकी बात सुन पहला आदमी उसे फटकारते हुए बोला, अपनी जुबान और अपनी आंखें संभाल कर रख, तू जानता नहीं क्या ये कौन है? अगर सर को तेरी नियत का पता भी चला ना, तो वो तेरी आंखें निकाल कुत्तों की मौत मारेंगे तुझे। वैसे भी बस आज की बात है, कल तक ये इस देश से बाहर होंगी और इसका वो पति इसे कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा। इतना बोल दोनों ही कमरे से निकल गए। उनके कमरे से निकलते ही वो लड़की जो इतनी देर से बेहोश थी, उसने झट से अपनी आंखें खोल दरवाजे की तरफ देखा। वो लड़की सोचने लगी, 2 दिन पहले किसी ने उसके गले में कुछ चुभा कर बेहोश कर दिया था और तब से ही उसे ड्रग्स देकर बेहोश रखा जा रहा था। भौमी मुश्किल से अपने बेड से खड़े होकर बोली, कौन है ये लोग? आखिर मेरा किडनैप किसने किया और कल कहाँ भेजने वाले हैं ये लोग मुझे? 2 दिनों से लगातार ड्रग्स देने की वजह से भौमी का शरीर काफी कमजोर हो गया था। वही उसने कुछ खाया भी नहीं था बीते 2 से।
भौमी बेड से खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। उसे खिड़की दिखी। भौमी खिड़की के पास जाकर बाहर देखा तो उसे बाहर कई सारे गार्ड्स पहरा देते हुए दिखे। भौमी जल्दी से खिड़की से पीछे हो गई। अगर भौमी अभी ठीक होती तो वो आराम से यहाँ से निकल सकती थी, मगर अभी भौमी की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और ऐसे में किसी से लड़ना मतलब बेवकूफ़ी करना होगा, और भौमी बेवकूफ़ नहीं थी। भौमी बेड पर बैठ अपने दिमाग को शांत कर बोली, ना जाने साला किसने राजस्थान की हुक्मरानीसा को किडनैप करने की जुर्रत की है। राजस्थान के हुक्मसा से उलझना मतलब ये कोई आम इंसान तो नहीं होगा। अचानक भौमी के पेट से गुरगुर होने लगी। भौमी अपना पेट पकड़ बच्चों जैसे बोली, आ भूख लगी है, अब एक किडनैप ही करना था तो कम से कम कुछ खिला तो देते, मगर लगता है इन कमीनों के पास ड्रग्स के अलावा कुछ है ही नहीं। एक बार मैं निकल जाऊं फिर इन लोगों को भी चूहों से ना खिलवाया ना तो मेरा नाम भी भौमी नहीं। भौमी बिस्तर से टेक लगा कर आंखें बंद कर ली। अचानक उसके मुंह से निकला, राजा सा। दूसरी तरफ शायला अपने फोन पर किसी से बात करते हुए फोन रख खुशी से हंसते हुए बोली, फाइनली 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 मैंने उस भौमी को रास्ते से हटा दिया। अब एक आक्ष मेरा होगा, सिर्फ मेरा, हमारे बीच में अब कोई नहीं आएगा। ये बोल वो तेज तेज पगला की तरह हंसने। अचानक उसे किसी ने कमर से पकड़ उसके गर्दन पर होंठ फिराते हुए बोला, तुम कुछ भूल रही हो डार्लिंग। शायला पीछे मुड़ उस आदमी के गर्दन पर बाहें लपेट बोलत, नहीं बेबी मैं कुछ नहीं भूली, आखिर अब मेरे साथ साथ तुम्हारा भी तो बदला पूरा होगा ना। आखिर एकाक्ष को बर्बाद करना ही तो तुम्हारा मकसद है, इसीलिए तो हमने हाथ मिलाया था, क्यों कल्याण नायक। कल्याण नायक उसकी गर्दन पर गेज बाइट कर गुस्से और नफरत से बोला, सिर्फ एकाक्ष ही नहीं बल्कि उसकी उस खूबसूरत बीवी को भी बर्बाद करके ही मुझे चैन मिलेगा। वो दांत पीस बोला, उस एकाक्ष ने मेरे डैड को बेइज्जत किया था ना, अब जब उसकी बीवी की इज्जत सरेआम नीलाम होंगी तब मुझे सैटिस्फैक्शन मिलेगा। और उसकी उस घमंडी बीवी ने सभी के सामने मुझे मारा था, मेरा हाथ तोड़ा था उस लोया ने, उसे कैसे मैं छोड़ सकता हूँ। उसके शरीर को नोच उसके घमंड को पैरों तले ना कुचला ना तो मेरा नाम भी कल्याण नायक नहीं। बस आज की रात, कल से उसका हर एक दिन जहन्नुम बनेगा और उसकी शुरुआत में करूँगा, उसको नंगा करके, पर उससे पहले आज की रात में तेरे साथ मनाऊंगा। इतना बोल उसने झट से उसके कपड़े उसके शरीर से अलग कर उसके होठों को चूमते हुए उसके शरीर को मसलने लगा। कल्याण शायला को बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आकर शायला के होठों उसके गर्दन कॉलर बोन को बुरी तरह से काटने लगा। शायल दर्द से चीला पड़ी मगर वो भी उसे एंजॉय कर रही थी। धीरे धीरे रात के अंधेरे में कल्याण और शायला की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। कल्याण के अंदर के जानवर को अब शायला और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जाने कितनी बार वो बेहोश हुई मगर कल्याण ने अपना वहशीपन नहीं छोड़ा। राजावत पैलेस की टेरेस पर ओम खड़ा हुआ था। उसकी आंखें नम थीं, वो भी भौमी को बहुत मिस कर रहा था। कुछ ही दिनों में उसका भौमी से काफी लगाव हो गया था। तभी उसका फोन बजा। ओम ने कॉलर आई देखी तो उसमें कारवी फ्लैश हो रहा था। इतनी रात को कारवी का कॉल देख ओम परेशान होकर उसका कॉल पिक कर बिना उसकी बात सुने कहा, कारवी क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो, कोई प्रॉब्लम है क्या वहाँ, कहीं बच्चे उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, रुकिए हम अभी आते हैं। कारवी उसे शांत कर बोली, अरे रुको पहले तुम शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चे भी। ओम कुछ शांत होकर बोला, फिर इतनी देर रात को कॉल क्यों किया। कारवी कुछ रूठ कर बोली, क्यों क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती। ओम बोला, हमारा मतलब ये नहीं था, तुम जब चाहे मुझे कॉल कर सकती हो, लेकिन इतनी रात को तुमने कॉल किया इसलिए हम बस पूछ रहे हैं। कारवी शांत होकर बोली, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे कुछ बेचैनी भी महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हारी भाभी मासा का कुछ पता चला। ओम मायूस होकर बोला, नहीं अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला, ना जाने किस हाल में है वो, बस एक बार हमें पता चल जाए इसके पीछे कौन है हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। कारवी बोली, ओम शांत हो जाओ, तुम देखना तुम्हारी भाभी मासा बहुत जल्दी मिल जाएगी, अच्छा अब मैं रखती हूँ। ओम ने हूँ बोल कॉल कट कर दिया। कारवी से बात कर अब उसे काफी अच्छा लग रहा था। एक खंडर जैसी जगह पर कुछ आदमी बंधे हुए थे, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, सभी की हालत काफी खराब थी। तभी वहां पर पाशा आया। पाशा एक आदमी से पूछा, क्या इसने अपना मुंह खोला। उस आदमी ने अपना सर झुका लिया। पाशा गुस्से से उस पर चिल्ला कर बोला, क्या तेरे हाथों में जंग लग गया है जो एक आदमी से बातें नहीं निकाल सका। जमीन पर पड़ा जख्मी आदमी अपनी सांसें संभालते हुए हंसते हुए बोला, तू चाहे कुछ भी कर ले पाशा, मैं तुझे को कुछ भी नहीं बताऊंगा, चाहे तू मेरी जान भी क्यों ना ले ले। पाशा गुस्से में उसे कुछ बोलता तभी पीछे से किसी की काफी डरावनी आवाज गूंजी, ठीक है जैसी तेरी इच्छा। उस आदमी ने आवाज की दिशा में देखा। उस आदमी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उसे विश्वास नहीं हो रहा था।
क्योंकि सामने खुद किन खड़ा था, वो भी बिना मास्क के। आज के लिए बस इतना ही। फोल्डेड हैंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर कमेंट्स।